اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سال دوم کے نتائج کا اعلان ہوا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی نے نتائج جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ فیس جمع کرنے والے 4,51,585 طلبہ کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، جس میں 2,28,754 طالبات جبکہ 2,22,881 طلبہ ہیں۔ 1,04,886 طلبہ نے اے گریڈ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح 61,887 طلبہ کو بی گریڈ جبکہ 1,08,093 طلبہ کو سی گریڈ دیا گیا ہے۔ سال اول کے نشانات کی بنیاد پر سال دوم کے نشانات دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقہ نیکلیس روڈ پر سابق وزیر اعظم آنجہانی پی وی نرسمہا راؤ کے مجسمے کی نقاب کشائی عمل میں لائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر اور ریاستی گورنر تمل سائی سوندراراجن نے مشترکہ طور پر پی وی نرسمہا راؤ کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس دوران پی وی مارگ کا بھی افتتاح عمل میں آیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے آنجہانی پی وی نرسمہا راؤ کی خدمات کو سراہتے ہوئے 100 سالہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران پی وی نرسمہا راؤ کی جانب سے تحریر کردہ چند کتابوں کا بھی رسم اجرا عمل میں آیا۔ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ کے سی آر نے کہا کہ نوودے کے علاوہ گروکل اسکول پی وی نرسمہا راؤ کی دین ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ آنجہانی پی وی نرسمہا راؤ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ అప్పటికి ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ మైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని 5 సంవత్సరాలు చాలా విజయవంతంగా నడిపినటువంటి ప్రజ్ఞాశీలి శ్రీ పివి గారు ఊరికే నడపడం కాదు, ఆ సందర్భంలో వారు తెచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు ఈరోజు భారతదేశంలో చలామణి అవుతున్నటువంటి డబ్బు కావచ్చు, ఒక ఫ్లోలాగా మన దేశానికి వస్తున్నటువంటి కార్పొరేట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కావచ్చు, అందులో యువతకు విరివిగా లభిస్తున్న ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కావచ్చు, ఈరోజు రాష్ట్రాల బడ్జెట్లు లక్షల కోట్లకు పెరుగుతున్నటువంటి తీరుతెన్నులు కావచ్చు, వీటన్నిటికీ మూలం పీవీ గారు తెచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు। పీవీ మన తెలంగాణ టీవీ ఏనాటికైనా కూడా మరి కేసీఆర్ ఈ మాట అంటున్నాడు, ఇక్కడ ఉండబడే జర్నలిస్ట్ మిత్రులు పత్రికా రంగ మిత్రులు మీరు కూడా అది ప్రదర్శించాలని చెప్తే నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక విశేషమైనటువంటి కృషి చేసింది। ఎవరు కృషి చేసినా వారు ప్రశంసలకు పాత్రులు। ఆ యొక్క పత్రిక పీవీ గారి యొక్క ప్రజ్ఞను అనేక రకాలుగా ఎంత గొప్పటి ప్రతిభాశాలి, ఎంత గొప్ప ప్రతిభావంతుడు మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పీవీ అని చెప్పి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో తెలియజెప్పడంలో ఆ పత్రిక వారు చాలా కృషి చేశారు। So I really respect him and I am really very happy and I am pleased to attend this program whenever Honorable Chief Minister and myself unveiled the statue of Honorable former Prime Minister Sri Narasimha Rao Garu. The family members told, as a family we are very happy. The Chief Minister reciprocated, now as a Telugu family we are all very happy. And as a Bharat family we are all very happy. It's a grand statue. And naming the necklace road as P.V. Narasimha Rao Marg, he has replaced the necklace to the statue so that the statue is ornamented. Such a grand statue, it was unveiled here. It's a great salute to the son of the soil. حیدرآباد ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، یہ کہنا ہے تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے ٹی آر کا۔ کے ٹی آر کے ہاتھوں آج شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جملہ 5 لنک روڈ کا افتتاح عمل میں آیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ شہر کی ترقی میں لنک روڈ کا اہم رول ہے، جس کے ذریعے ٹریفک کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جملہ 22 لنک روڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اب تک 16 لنک روڈ مکمل کیے گئے ہیں، بہت جلد مزید 6 لنک روڈ مکمل کرا لیے جائیں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے نئے صدر 7 جولائی کو عہدے کا حلف لیں گے۔ پارٹی حلقوں کے اطلاع کے مطابق ریونت ریڈی 7 جولائی کو دوپہر 1:30 بجے اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ عہدے کا حلف لینے کے بعد ریونت ریڈی ریاست بھر میں پد یاترا کریں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی کو اقتدار سے بے دخل کرے گی۔
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौमंतखब सदर रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव से मुलाकात की। वी हनुमंतराव नासाजी सेहत की बिना पर हैदरगुड़ा के अपोलो अस्पताल में जेर इलाज हैं। रेवंत रेड्डी ने वी हनुमंतराव से मुलाकात करते हुए सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। रेवंत रेड्डी ने वी हनुमंतराव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम को धोखा देने वाली टीआरएस हुकूमत अब दलितों को बाइख्तियार बनाने के नाम पर दलितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। కేసీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పెట్టే 4 గజాల భూమి పంజగుట్ట చౌరస్తా లేదు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆయన మాత్రం పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాను ఇల్లు అది ఇవ్వకపోను అసైన్మెంట్ భూములు కూర్చుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా ఆనాడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అని చెప్పి అధికారులకు ఒక ఇల్లు కూడా కట్టించలేదు. ఇవాళ మళ్ళీ దళిత ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పి నియోజకవర్గానికి 1000 మందిని నేను ఇంకా పేపర్ పూర్తి చదివే హనుమంత నా వివరాలు కూడా చెప్తున్నాడు. నియోజకవర్గానికి 100 మందిని సెలెక్ట్ చేసి 10 లక్షలు అంటున్నాడు. అసలు ఏమన్నా కేసీఆర్ అన్నం తింటున్నాడా, జ్ఞానం ఉన్నదా? నియోజకవర్గానికి 100 మంది అంటే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 15-20% జనాభా దళితులు ఉన్నారు. అంటే 5 లక్షల ఓటర్లలో 1,00,000 మంది దళితులు ఉంటే 100 మందికి ఇస్తా అంటే ఇది దళిత ద్రోహి కాదా? और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद करने पर रियासत भर में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने जश्न मनाया। कई मकामात पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए आवाम में मिठाइयां तकसीम की। रियासत भर के तमाम कांग्रेस पार्टी के दफातर में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों का कहना है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार हासिल होगा। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कामयाब होगी। सरकारी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन, पेशेंट केयर, वेमेन सिक्योरिटी गार्ड व दीगर ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। हैदराबाद के इलाका किंग कोटी अस्पताल में अनोखे अंदाज में एहतजाज किया गया, जिसमें दर्जनों मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना की वबा में भी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मसाइल हल न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की उन्होंने धमकी दी है। और अब बात कोरोना केसेस की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1000 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 81,485 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 748 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। वहीं कल एक ही दिन में रियासत भर में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज़्यादा 121 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के 3 अजला आसिफाबाद, कामारेड्डी और आदिलाबाद में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। कोरोना से बचने का वाहिद इलाज वैक्सीन है। आलिम दीन मुफ्ती सादिक मुहीउद्दीन और जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर हामिद मोहम्मद खान ने कोरोना का वैक्सीन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर आ रहे बयानात बेबुनियाद हैं। तमाम आवाम को चाहिए कि वो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लें। इंसानों के माशरे को लिपरेट में ले लेती है तो उससे बचाव की तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। मौजूदा हालात में उन तदाबीर में जो अहम तदबीरें बताई गई हैं, एक तो मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल है, और उसके साथ साथ कोविड वैक्सीन भी उसकी समझिए एक बुनियादी ज़रूरत है। इस वक्त बहुत से हज़रात खौफ में मुब्तला हैं और उनको पता नहीं है कि कोविड से फ़ायदा है या नुकसान है। अक्सर लोग ख़तरात महसूस कर रहे हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर्स की और माहिर डॉक्टर्स की राय यह है कि इंशाअल्लाह इसमें कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ रुजू इल्लाह रहना चाहिए। सिर्फ तदाबीर पर भरोसा करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को असबाब पर बनाया है। असबाब इख्तियार करते हुए सिर्फ असबाब पर तकिया नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला पर नज़र रहनी चाहिए। और वही शिफा देने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है।
और वही मौत से दो चार करने वाला है। दुनिया में जब कभी वबाएं आईं, जो मालूम तारीख़ है, उसमें जब कभी वबा आई तो टीका लिया गया। हमारे बचपन में चेचक बहुत आम थी, टीके से ही उसको कंट्रोल किया गया। हैज़ा आम था, इसी तरह खसरा आम था, पोलियो आम था। ये सब पर कंट्रोल वैक्सीनेशन के ज़रिए से ही हुआ है। चुनाचे अब ये जो वबा है, इसके लिए भी वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है और अपनी जान को बचाना और उसकी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। मुसलमानों में ये गलतफहमी फैला दी गई कि वैक्सीनेशन से एक साजिश है और नस्ल कुशी के लिए ये किया जा रहा है, ये तसव्वुर गलत है। अपने और अपने अहल व अयाल की, अपने ख़ानदान और अपने दोस्त अहबाब की जान की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन अव्वलीन फुर्सत के अंदर लेना चाहिए, ये हम अपील करते हैं। कुछ और खबरें। गुज़िश्ता रोज जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले पूरी तरह से मोदी हुकूमत की नाकामी है, ये कहना है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माहिरीन का कहना है कि ड्रोन चीनी या अमरीकी साख्त का है। असद ओवैसी ने कहा कि यह हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की स्ट्रैटेजिक नाकामी है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है, ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अभी मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं। जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज हैं, मालूम करना चाहिए कैसे आया वहां पर। और आपकी नाकामी है। SOT और हयातनगर पुलिस की खुसूसी टीम ने गैर कानूनी तौर पर राशन चावल सप्लाई करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 25 टन राशन चावल जब्त किए गए। इसके अलावा पुलिस ने 2 ट्रक, 2 ऑटोज और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किए गए हैं। मजीद पूछताछ जारी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से।